Very good morning, dear students. As in the last class, we have only started the topic types of farming. Now, in this class, we will go with the topic in detail. So, we have studied up to the subsistence farming and the commercial farming. We are again starting from this topic. So, in types of farming, mainly on the basis of geographical factors, and if we talk about on the basis of various other things, climate and other things like geographical conditions, or if we talk about the demand of produce or labor and the level of technology. So farming is broadly divided into subsistence farming and commercial farming. Okay, on broad basis it is divided into commercial farming and subsistence farming. Now, as we have discussed, subsistence farming is mainly practiced to meet the needs of the farmer's family, as we have discussed in the last video, and because of this, low level of technology is used. ठीक है, फार्मर क्या कर रहा है, अपनी फैमिली की नीड्स को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्शन कर रहा है, एंड लो लेवल ऑफ technology is used and household members are used as laborer. ठीक है, क्योंकि ज्यादा बड़े लेवल पे तो प्रोडक्शन कर ही नहीं रहा है, तो लेबर कौन होगा यहाँ पर, हाउसहोल्ड मेंबर्स. Other than this, subsistence farming can be further divided into intensive subsistence farming and primitive subsistence farming. अब जो ये subsistence farming है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. एक तो है intensive subsistence farming और दूसरा है primitive subsistence farming. ठीक है, आगे कमर्शियल में भी आप डिवीजन पढ़ने वाले हैं. So it is now very clear to you that subsistence farming is the farming which is done to meet the needs of the farmer's family, and hence the production is at small level, so low level of technology is used, and household members, घर के members को क्या कर लिया जाता है, लेबर की तरह यूज कर लिया जाता है. Now subsistence farming is further divided into intensive farming and primitive subsistence farming. So firstly we will talk about intensive subsistence farming. So what is done in intensive subsistence farming? Intensive subsistence agriculture, the farmer cultivates a small plot of land using simple tools and more labor. यहाँ पर क्या हो रहा है, फार्मर एक जो प्लॉट है वहाँ पर कल्टीवेशन कर रहा है, स्मॉल प्लॉट पर, ये समझ लो स्मॉल एरिया पर फार्मर कल्टीवेट कर रहा है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में, और सिंपल टूल्स कर रहा है लेकिन ज़्यादा लेबर यूज कर रहा है. तो इसमें आपको याद रखना क्या है, मोर लेबर एंड सिंपल टूल. ठीक है, in intensive subsistence farming, farmer is cultivating on a small plot and he is using more labor and simple tools for cultivation. And what he used to do, climate with large number of days with sunshine and fertile soil permits growing more than one crop annually on the same plot. आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि क्लाइमेट जो है और सनशाइन की वजह से क्या हो जाता है, साल में एनुअली एक क्रॉप, एक एरिया पर ही, सेम प्लॉट पर ही हम एक से ज्यादा क्रॉप्स क्या कर लेते हैं, ग्रो कर लेते हैं. किसमें, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. एंड राइस इज मेन क्रॉप हियर and other crops are also grown as per intensive subsistence farming like rice, maize, wheat, pulses, oilseeds, and it is more prevalent, या फिर कह सकते हैं ये ज़्यादातर देखी जाती है intensive subsistence farming thickly populated areas of monsoon region, जहाँ पर जो monsoon areas हैं जैसे कि साउथ में या साउथ ईस्ट में या ईस्ट एशियन एरियाज में हमें देखने को क्या मिलता है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. वैसे आपके साथ आपको रिवाइज भी करवाती चलूंगी. तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या पढ़ा, स्मॉल प्लॉट इज कल्टिवेटेड बाय द फार्मर वेयर ही uses simple tools and more labor, and with the help of proper climatic conditions and sunshine, farmer is able to cultivate more than one crop on the same plot annually. After that, we have seen that the crops mainly grown are rice, wheat, maize, pulses, oilseed, and it is mainly seed. Intensive subsistence farming ज़्यादातर कहाँ देखी जाती है, thickly populated areas में. Okay, and
लाइक साउथ और साउथ ईस्ट जहाँ पे मानसून अच्छा खासा रहता है। अब आगे हम देखते हैं किसको, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। सो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग इज डिवाइडेड इनटू, प्रिमिटिव मतलब ओल्ड, ठीक है, सबसिस्टेंस का मतलब पता ही चल गया, टू मीट द फार्मर्स नीड, एंड एग्रीकल्चर मीन्स कल्टीवेशन। तो ओल्ड सिस्टम जो था फैमिली नीड्स को पूरा करने का, कल्टीवेशन का, उसको बोला जाता है एंशिएंट मेथड जो था फैमिली नीड्स को कंप्लीट करने के लिए प्रोडक्शन करना, इज नोन एज प्रिमिटिव सबसिस्टेंस agriculture. It is further divided into shifting cultivation and nomadic herding. So first we will study about shifting cultivation. Now shifting cultivation is practiced in thickly forested areas of Amazon basin. जो बहुत ज़्यादा घने फॉरेस्ट एरियाज हैं अमेजन बेसिन में, ट्रॉपिकल अफ्रीका में, या कुछ पार्ट जो साउथ ईस्ट एशिया है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, जो बहुत ही घने जंगलों वाला जो एरिया है, वहाँ पर क्या किया जाता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता है। और इन एरियाज में क्या है, हैवी रेनफॉल होती है एंड क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन, और बिकॉज ऑफ द रेनफॉल क्या हो जाता है, जल्दी रीजनरेशन हो जाता है वहाँ पर वेजिटेशन का, दोबारा से वेजिटेशन वहाँ पर अराइज हो जाती है। तो इसमें किया जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन में, आपको पहले तो दो फीचर्स पता चल गए कि जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है और थिकली फॉरेस्ट एरियाज में शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता है, एंड वहाँ पर इन एरियाज में रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन बहुत क्विक हो जाता है बिकॉज ऑफ द गुड हैवी रेनफॉल। एंड व्हाट इज डन इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन, अ प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड। सबसे पहले जो प्लॉट है एरिया, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा घना है यहाँ पे, थिकली फॉरेस्ट एरिया है यहाँ पे, तो सबसे पहले जो लैंड है, ठीक है, प्लॉट है, उसको क्लियर किया जाता है बाय फेलिंग द ट्रीज, ठीक है, किया जाता है ट्रीज को और उनको बर्न कर दिया जाता है। अब क्या है, वहाँ पे क्लियर हो गया लैंड, अब ऐश को सॉइल में मिक्स कर दिया जाता है और कुछ क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं जैसे कि मेज, पोटैटोज, ओके, इस तरह के क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। एंड जब सॉइल अपनी फर्टिलिटी लूज करने लगता है, ठीक है, तो लैंड को खाली छोड़कर सेम प्रैक्टिस दूसरे जगह पर कल्टीवेटर स्टार्ट कर देता है। सो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन और एग्रीकल्चर। सबसे पहले हमने क्या किया, अ प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड इन द फॉरेस्ट एंड बाय फेलिंग और वी कैन से कटिंग ट्रीज, and then the place is burnt and the ash is mixed in the soil so that the soil gets fertility, and 2 to 3 years up to the time when the soil is fertility, crops are grown, and the same practice when the soil loses fertility again done at different part of land or different plot of land। वहाँ पर भी जाकर क्या किया जाएगा, ट्रीज को कट किया जाएगा और फिर बर्न किया जाएगा, ऐश को सॉइल में मिक्स किया जाएगा ताकि फर्टिलिटी आ जाए सॉइल में, और जब तक सॉइल में फर्टिलिटी रहेगी कुछ क्रॉप्स वहाँ पे ग्रो होंगे, और जब सॉइल फर्टिलिटी लूज कर देगी सेम प्रोसेस इज अगेन रिपीटेड टू द अनदर पार्ट ऑफ द लैंड। दिस इज नोन एज शिफ्टिंग। तो क्या करते रहते हैं, शिफ्ट करते रहते हैं, और इसी को बोला जाता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग में कहाँ की जाती है, जो सेमी एरिड एरियाज है या फिर एरिड एरियाज है, जो मतलब ड्राई एरियाज है जहाँ पर वाटर फैसिलिटीज इतना प्रॉपर नहीं है, तो एरिड या फिर सेमी एरिड एरियाज में ऑफ सहारा में देखने को मिलता है, सेंट्रल एशिया में देखने को मिलता है, कुछ इंडिया के पार्ट्स में लाइक राजस्थान एंड जम्मू कश्मीर में भी हमें देखने को मिल जाता है नोमैडिक हर्डिंग। तो इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हर्डमैन्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर एनिमल्स फॉर फॉडर एंड वाटर। इसमें क्या होता है, जो हर्डमैन समझते हो ना, जो एनिमल्स के साथ, जैसे गडरिया वगैरह जिसको बोल दिया जाता है, तो एनिमल्स के साथ क्या करते हैं, प्लेस टू प्लेस मूव करते रहते हैं, क्या किस लिए, इन सर्च ऑफ फॉडर एंड वाटर, उनके चारे और पानी के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं अलॉन्ग विद डिफिनेट रूट, प्रॉपर रूट्स के साथ में। एंड ये इस तरह का मूवमेंट क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट्स एंड टेरेन। ये इसलिए होता है कि या तो क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी होती है, कई बार देखते हो कि मार्च के टाइम में, ठीक है, अप्रैल के टाइम में कई सारे लोग जो है शीप्स को लेकर इधर आपको दिखते हैं, पूरे साल भर नहीं दिखेंगे, तो उस टाइम क्या होता है, उनके इलाके में फॉडर वगैरह की प्रॉपर
अरेंजमेंट नहीं होता है, इसलिए वो इस तरफ आते हैं। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से। और दूसरा है टेरेन। टेरेन स्ट्रक्चर ऑफ लैंड मैंने बताया था कि जैसे पहाड़ी इलाकों में आप देखते हो एक तरफ अगर घास वगैरह है, जो भी है, घास खत्म हो गई तो दूसरी तरफ आ जाते हैं। तो लैंड के फीचर्स की वजह से ही होता है। माउंटेन एरियाज है या प्लेटो एरियाज है या फिर प्लेन एरियाज, ज़्यादातर प्लेन एरियाज में कंपेरेटिवली ज़्यादा वेजिटेशन होती है तो उस तरफ आ जाता है। तो क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट्स की वजह से और टेरेन की वजह से उनको ऐसे मूव करना पड़ता है। मेनली शीप, कैमल, याक एंड गोट्स आर मोस्टली कॉमनली रियर्ड। तो ठीक है, इसलिए इनको रियर किया जाता है, रखा जाता है। एंड दीज एनिमल्स प्रोवाइड मिल्क, वुड, हाइट्स एंड अदर प्रोड्यूस टू द हर्डर्स एंड देयर फैमिलीज। इनसे उनकी इनकम हो जाती है। तो दिस इज नोन एज नोमैटिक हर्डिंग। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कमर्शियल फार्मिंग। क्रॉप्स ग्रोन एंड एनिमल्स आर रेयर्ड फॉर सेल इन मार्केट। कमर्शियल का मतलब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था। The purpose is to selling in the market for earning profit. Now in this, what is done? Crops are grown and animals are reared for sale in the market. Commercial farming में तो इसमें क्या होगा? The area cultivated and the amount of capital is used is large. जो एरिया कल्टिवेट करेंगे, क्या था subsistence farming में small area was cultivated, but in commercial farming large area will be cultivated and more capital will be used. कैपिटल का मतलब है जो मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं हम फार्मिंग में। जैसे कि अगर बात करें तो फार्मिंग में हम कहाँ कहाँ मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं भाई? सीड्स बाय कर रहे हैं, हम थ्रेशर्स को यूज कर रहे हैं, हम प्लोइंग कर रहे हैं ट्रैक्टर्स के थ्रू या मैनुअली जैसे भी, तो उसके कोई ना कोई चार्जेस बनते हैं। हम फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, तो ये सारा क्या होगा? ये कैपिटल हो जाएगा। तो कैपिटल जो है, कैपिटल मनी, जो मनी यूज किया जाएगा उसको कैपिटल बोलेंगे। ठीक है, तो जो मनी यूज कर रहे हैं या कैपिटल यूज कर रहे हैं कमर्शियल फार्मिंग में, दैट विल आल्सो बी मोर इन कंपैरिजन टू सब्सिस्टेंस फार्मिंग. So more capital is used and large area is used for cultivation and most of the work is done by machines. Machines से यहाँ पर ज्यादा काम होता है किसमें? कमर्शियल फार्मिंग में. एंड कमर्शियल फार्मिंग के अदर सब टाइप्स हैं. कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग एंड नेक्स्ट वन इज मिक्स्ड फार्मिंग. इसके अलावा एक और है जो है प्लांटेशन. ओके, so three types are there: commercial grain farming, mixed farming and plantation. So first of all we are talking about commercial grain farming. Commercial grain farming में क्या होता है? Crops are grown for commercial purpose, ये तो हमें पता ही है. And wheat and maize are commercially grown grains. Wheat जो है और maize है mainly commercially grown grains है, means for selling in the market. And मेनली अगर वर्ल्ड की बात करें तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका में ही किया जाता है, प्रैक्टिसाइज्ड किया जाता है, यूरोप में, एशिया में. एंड दीज एरियाज आर स्पार्सली पॉपुलेटेड, मतलब कम पॉपुलेटेड है, विद लार्ज फार्म्स स्प्रेडिंग ऑन हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर्स. इन एरियाज क्या है? बहुत कम पॉपुलेशन है, बड़े बड़े फार्म्स हैं, दूर दूर तक फैले हुए हैं. तो यहाँ पर आराम से किसको कमर्शियली प्रोड्यूस किया जा रहा है? ग्रेन्स को, मेज एंड व्हीट. And severe winter restrict the growing season and only a single crops can be grow. Sorry. अब जो विंटर जो है उस एरिया में बहुत ज्यादा होता है विंटर सीजन, तो सिर्फ एक क्रॉप वहाँ पर ग्रो किया जाता है. ठीक है, सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ईयरली. Now next we will talk about the mixed farming. Mixed farming की बात करें तो land is used for growing food and fodder and rearing लाइवस्टॉक. इसमें क्या कर रहे हैं? मिक्स्ड फार्मिंग में हम लैंड को फूड प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज कर रहे हैं, फॉडर एनिमल्स का जो चारा है उसको प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज कर रहे हैं, क्रॉप्स प्लस रियरिंग ऑफ एनिमल्स, यानी अपने एनिमल्स को भी हम वहां पर ही रख रहे हैं. तो मेनली कहाँ कहाँ किया जाता है? साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, साउथ अफ्रीका में, यूरोप में, ईस्टर्न यूएसए में एंड अर्जेंटीना में. ओके, now next is the third type is plantation. Okay, plantation में क्या होता है? ये एक तरह की कमर्शियल फार्मिंग है जिसमें सिंगल क्रॉप जो है वो ग्रो किया जाता है बड़े से एरिया में. ठीक है, जैसे आपने टी गार्डन्स देखे होंगे, कॉफी गार्डन्स देखे होंगे, तो बड़ा सा एरिया होगा और उसमें सिंगल क्रॉप ग्रो किए जाते हैं, टी, कॉफी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना एंड कॉटन. और इसमें क्या है? बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है प्लांटेशन में. मोर लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड. कैपिटल भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, मनी इन्वेस्टेड इन द
farming of or growing of crop. Then the produce may be processed on the farm itself or in nearby factories. अब जो भी प्रोडक्शन होता है किसमें, प्लांटेशंस में, चाहे टी हो, कॉफी हो, रबर हो या फिर शुगर केन हो, तो इनको या तो घर पे प्रोसेस किया जाता है या फिर आसपास की फैक्ट्रीज में इनको प्रोसेस किया जाता है आगे। जैसे कॉटन सैडी क्लोथ बनता है तो यहाँ से घरों में लोग लाते हैं कॉटन, फिर कहाँ सेल करते हैं, फैक्ट्रीज वगैरह में, मिल वगैरह में सेल कर देते हैं। एंड इन दिस फार्मिंग जो है, प्लांटेशन फार्मिंग में जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क इज एसेंशियल इन प्लांटेशन। प्लांटेशन में क्या हो रहा है कि या तो फैक्ट्री में जा रहा है, तो फैक्ट्री में जाने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो मेनली ट्रॉपिकल रीजन्स में प्लांटेशन हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि रबर मलेशिया में, कॉफ़ी प्लांटेशन ब्राज़ील में, टी प्लांटेशन इंडिया और श्रीलंका में हमें देखने को मिल जाते हैं। तो पिक्चर्स आर गिवन इन योर बुक of a banana plantation. Okay, now we will deal with the major crops. अब मेजर क्रॉप्स वाला जो टॉपिक है मैं यहाँ लिख रही हूँ, यहाँ मैंने ज़्यादा लिखा नहीं डिटेल में, बिकॉज इसमें जो है वो डायरेक्टली आपको क्या करना है, लर्न करना है। आपको क्या क्या लर्न करना है वो मैं आपको बता दूंगी। मेजर क्रॉप्स के बारे में यहाँ लिखने का कोई सेंस लगा नहीं मुझे। ओनली यू हैव टू लर्न 4 to 5 फीचर्स। हर क्रॉप के बारे में आपको क्या पढ़ना है, 4 to 5 फीचर्स पढ़ने हैं। 4 to 5 फीचर्स कैसे पढ़ने हैं देखिए, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये ग्रो कहाँ किया जाता है। ठीक है, उन एरियाज को आपको, ग्रोन एरियाज आपको याद रखने हैं। प्लस में सॉइल अगर बताया है तो सॉइल कैसा चाहिए, टेम्परेचर अगर आपको बताया है तो टेम्परेचर कैसा चाहिए। अदर देन दिस, अगर आपको बोला गया है कि रेनफॉल के बारे में, रेनफॉल यू विल ऑल्सो रिमेंबर। एंड इफ यू आर सेड अबाउट इंडिया में कहीं किसी जगह के बारे में बताया गया है, मेनली इट इज दे हैव टोल्ड अबाउट वर्ल्ड, तो ये 4 to 5 फीचर्स आपको याद करना है। जैसे कि आपको वर्ल्ड में कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, कहाँ का ये मेन फूड है, ठीक है, और जो है इसके अलावा सॉइल, टेम्परेचर, रेनफॉल कितना चाहिए, मेन फूड कहाँ का है, तो these things you will remember in the major crops. So we'll do this topic. So firstly, as we have seen many varieties of crops are grown to meet the requirement of the ग्रोइंग पॉपुलेशन। जो ग्रोइंग पॉपुलेशन उनकी रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए बहुत ज़्यादा क्रॉप्स क्या किए जाते हैं, ग्रो किए जाते हैं। जैसे कि राइस एंड व्हीट का बेटा इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और अगर अदर क्रॉप्स की बात करें तो कॉटन, कॉफ़ी का आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, एंड द टी का। तो राइस से स्टार्ट कर लेते हैं, अलग अलग क्रॉप्स किए जाते हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे फूड क्रॉप्स की। फूड क्रॉप्स मतलब जिनको हम एज अ फूड यूज करते हैं, जैसे कि राइस हो गया, व्हीट हो गया, मेज हो गया, मिलेट्स हो गया, और जूट और कॉटन क्या है, फाइबर क्रॉप्स है, उनको हम कभी खाने में यूज नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा बेवरेज क्रॉप्स की बात करें तो टी एंड कॉफी है, उनको हम पीने के, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये अंतर है। तो सबसे पहले फूड क्रॉप्स की बात कर लेते हैं। एंड फूड क्रॉप्स 4 आर गिवन, राइस, व्हीट, मिलेट्स एंड मेज। Then fiber crops 2 are given, jute and cotton, and then beverage crops coffee and tea are given to you. So let's start. So for rice, अगर हम राइस की बात करें तो एक मेजर फूड क्रॉप है इसके लिए, वर्ल्ड के लिए, वर्ल्ड लेवल पे राइस जो है एक मेजर फूड क्रॉप है, एंड इट इज द स्टेपल डाइट। स्टेपल डाइट का मतलब होता है मेन डाइट है ये, कहाँ की, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज की। और अब इसको टेम्परेचर क्या चाहिए, नीड्स हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये आपसे तब लिखोगे ये सारी बातें जब आपसे क्लाइमेटिक कंडीशंस पूछा जाए फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस, तब आप लिखेंगे कि इसको, राइस को हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, प्लस में रेनफॉल चाहिए। और सबसे अच्छा ये ग्रो करता है एलुवियल क्लेई सॉइल में, क्योंकि उसके पास वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है। चाइना इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस, फॉलोड बाय इंडिया, जापान, श्रीलंका, इजिप्ट। चाइना सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का, और उसके बाद
जो इंडिया है, जापान, श्रीलंका और इजिप्ट भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन कर लेते हैं। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश 2 to 3 क्रॉप्स आर ग्रोन इन अ ईयर। वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में राइस का अच्छे से क्रॉप्स ग्रो किया जाता है, 2 to 3 क्रॉप्स इन अ ईयर। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट फूड क्रॉप दैट इज वीट। तो वीट को मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए और रेनफॉल चाहिए ग्रोइंग सीजन के टाइम एंड ब्राइट सनशाइन चाहिए हार्वेस्टिंग के टाइम। यानी कि रेनफॉल उसको चाहिए लेकिन स्टार्टिंग जब ग्रो कर रहे हैं वीट तब चाहिए, और अच्छी सनशाइन चाहिए उसके हार्वेस्ट के टाइम। इसके अलावा सबसे अच्छा ये ग्रो कर रहा है लोमी सॉइल में। और अगर कंट्रीज की बात करें तो यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया में काफ़ी अच्छा ये ग्रो करता है। इंडिया में एक विंटर क्रॉप है। ओके, नेक्स्ट इज मिलेट्स की अगर बात करें तो दे आर ग्रोन एज कोर्स ग्रेन, मोटे जो ग्रेन्स होते हैं ना, मोटे दानों वाले, उनके लिए बोला गया है ये। एंड दे कैन बी यूज्ड ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल। बाजरा या फिर मिलेट्स, बाजरे को बोला जाता है, तो ये लेस सैंडी सॉइल है या लेस फर्टाइल सॉइल है, वहाँ भी अच्छे से ग्रो कर जाता है। एंड ये हार्डी क्रॉप होता है दैट नीड्स लो रेनफॉल एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर। इसको ज़्यादा रेनफॉल की ज़रूरत नहीं होती। बाजरे की फसल आप देखते हो जिन एरियाज में कम रेनफॉल होती है वहाँ भी ग्रो कर जाती है, तो एडिक्वेट रेनफॉल, नॉर्मल सी रेनफॉल चाहिए होती है इसको। एंड बाजरा, रागी, जवार आर ग्रोन इन इंडिया। एंड अगर अदर कंट्रीज की बात करें तो नाइजीरिया, चाइना एंड नाइगर में भी ग्रो किया जाता है मिलेट्स। नेक्स्ट फूड क्रॉप इज मेज। मेज की बात करें तो मॉडरेट टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड बाय मेज, रेनफॉल एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन। काफ़ी अच्छी धूप चाहिए इसको, सनशाइन भी चाहिए, रेनफॉल भी चाहिए और नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए। तो जो फर्टाइल सॉइल्स हैं, अच्छी खासी फर्टाइल सॉइल की डिमांड होती है मेज को ग्रो करने के लिए। और कंट्रीज जहाँ पर ग्रो किया जाता है वो है नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा एंड इंडिया एंड मैक्सिको। ठीक है, इन एरियाज में ग्रो किया जाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द टू फाइबर क्रॉप्स दैट इज जूट एंड कॉटन। तो कॉटन की क्लाइमेटिक कंडीशंस की अगर बात करें तो हाई टेम्परेचर चाहिए किसको, कॉटन को, हल्की रेनफॉल चाहिए एंड 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, यानी 210 दिन फ्रॉस्ट फ्री होने चाहिए, मतलब धुंध वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए, और ब्राइट सनशाइन चाहिए ताकि इसकी प्रॉपर ग्रोथ हो सके। सबसे अच्छा ये कॉटन ग्रो करता है ब्लैक और एलुवियम सॉइल में। और कंट्रीज की बात करें तो यूएसए, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, ब्राजील, इजिप्ट जो है इसके लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं किसके, कॉटन के। और ये बहुत अच्छा रॉ मटेरियल है। कॉटन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, आगे जूट जो है फाइबर क्रॉप, उसकी बात कर लेते हैं। जूट को बोला जाता है गोल्डन फाइबर। क्यों बोला जाता है वो आगे देखेंगे हम। तो जूट को बोला जाता है गोल्डन फाइबर, और एलुवियल सॉइल इसको चाहिए, प्लस हाई टेम्परेचर चाहिए, प्लस हैवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। और ट्रॉपिकल एरियाज में काफ़ी ग्रो किया जाता है। और इंडिया एंड बांग्लादेश जो है दीज आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ जूट। अब आगे हम देख लेते हैं कॉफ़ी जो है और टी जो है, बीवरेज क्रॉप्स के बारे में। तो कॉफ़ी जो है वार्म एंड वेट क्लाइमेट चाहिए, तभी आप देखोगे कि नॉर्थ ईस्ट में, असम वगैरह में, ठीक है, या फिर जो कर्नाटका, केरला वाला प्लेस है वहाँ आपको देखने को मिलेंगे कॉफ़ी प्लांटेशंस। तो लोमी सोइल चाहिए, वेट क्लाइमेट चाहिए, वार्म एंड वेट। और हिल स्लोप्स जो है वो ज़्यादा सूटेबल है किसके लिए, फॉर ग्रोइंग दिस क्रॉप। ब्राज़ील जो है ज़्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का, फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया। टी की बात करें तो टी इज अ बेवरेज क्रॉप्स ग्रो इन plantations and it requires cool climate and well distributed rainfall throughout the year for the growth of its tender leaves। मतलब कंटिन्यू बेसिस पे इसको क्या चाहिए, हाई रेनफॉल चाहिए टी को, और कूल क्लाइमेट चाहिए। और अगर बात करें सॉइल की तो लोमी सॉइल और जेंटल स्लोप्स ज़्यादा सुटेबल है टी के लिए। लार्ज लेबर इज रिक्वायर्ड, और आपने पढ़ाई था प्लांटेशन में ज़्यादा लेबर चाहिए टू रिक्वायर टू पिक द लीव्स तोड़ने के लिए। आपने टी कॉफ़ी के एड्स वगैरह आते हैं तो उनमें भी काफ़ी देखा होगा। टी तो बीन्स से बनती है, सीड से, टी तो उससे बनती है लीव से, कॉफ़ी जो है कॉफ़ी बीन्स से बनती है।
तो केरला सॉरी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूस बेस्ट क्वालिटी ऑफ टी इन द वर्ल्ड। ये आपने थोड़ा सा पढ़ लिया। इसके अलावा हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि मेज जो है कॉर्न भी कहलाती है, उसकी काफ़ी कलरफुल वेराइटीज देखने को मिलती है वर्ल्ड में। और कुछ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया हुआ है कॉफ़ी प्लांट के बारे में। देर आर मैनी डिफरेंट वर्जन्स अबाउट द डिस्कवरी ऑफ कॉफ़ी। तो अलग अलग वर्जन्स हैं डिस्कवरी ऑफ कॉफ़ी से रिलेटेड। जैसे कि AD 1850 में खाल्डी एक अरब गोट हर्डर थे, वो पजल हो गए थे बाय गियर एंटीक्स ऑफ हिज फ्लॉक्स एंड टेस्टेड द बेरीज ऑफ द एवरग्रीन बश ऑफ द गोट्स वर फीडिंग। तो वो रास्ता भटक गए थे और उन्होंने क्या किया था, कॉफ़ीज के को टेस्ट किया। ऐसे डिस्कवरी अलग अलग तरीके से के बारे में फैक्ट्स है कॉफ़ी के बारे में। आगे हम देखेंगे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का मतलब है कि एफर्ट्स लगाना टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ द पॉपुलेशन। देखो क्या हो रहा है, पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। अब पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, उसका मतलब है कि फूड रिलेटेड डिमांड्स भी डे बाय डे इंक्रीज हो रही हैं। तो इन फूड रिलेटेड डिमांड्स को मीट करने के लिए क्या बनाया गया है, एफर्ट्स लगाए गए हैं, उसको बोला जाता है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। सो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट रेफर्स टू द एफर्ट्स मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन। ठीक है, फार्म प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए वो फार्म प्रोडक्शन क्यों इंक्रीज किया जा रहा है, ताकि जो ग्रोइंग डिमांड है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की उसको मीटअप किया जा सके। तो इन एफर्ट्स को बोला जाता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। अब इनडायरेक्टली हम बात कर रहे हैं कि हम कैसे प्रोडक्शन बढ़ाएं। तो देर आर 4 वेज। या तो हम क्रॉप एरिया, जो एरिया हम प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं उसको इंक्रीज कर लें, यानी लैंड को इंक्रीज कर लें। ज़्यादा लैंड यूज करेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा। सेकेंड है नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, या फिर हम जितना क्रॉप ग्रो कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी बढ़ा दें, या तो लैंड की क्वांटिटी बढ़ा दें या क्रॉप्स क्वांटिटी बढ़ा दें, ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो करें। इसके अलावा बेटर इरिगेशनल फैसिलिटीज हम यूज करें, या फिर क्या करें, फर्टिलाइजर्स एंड हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स को ज़्यादा हम यूज करें। These are the different methods for agricultural development or increasing the production for the increasing population. So different places, different parts of the world agriculture is done, and in some areas where the population developing countries जो है जहाँ large population है वहाँ intensive agriculture किया जाता है, क्योंकि क्रॉप्स जो है छोटे छोटे होल्डिंग्स पर यूज ग्रो किया जाता है। और लार्ज होल्डिंग्स जो है लैंड की वो कमर्शियल एग्रीकल्चर की तरह से की जाती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, रशिया एंड USA में। और ये हमें ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा जब हम दो फार्म्स को कंपेयर करेंगे, फार्म इन इंडिया एंड फार्म इन USA। तो इंडिया में जो फार्मर है वो किसकी तरह काम करता है, पीजेंट्स की तरह, जो मजदूर वगैरह होते हैं फार्म पे काम करते हैं उनकी तरह। और जो फार्मर्स हैं USA में वो किसकी तरह काम करते हैं, एक बिजनेसमैन की तरह। तो ये हम क्यों बोल रहे हैं, ये हम पूरा केस स्टडी जो पढ़ेंगे, स्टोरी पढ़ेंगे, दोनों जगह के फार्मर्स को कंपेयर करेंगे तब हमें समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम कंपेयर कर लेते हैं किसको, किसके बारे में पढ़ लेते हैं, स्मॉल फार्मर इंडिया के बारे में, कि इंडिया में जो फार्म होता है वो किस तरीके का होता है। तो यहाँ पर एक स्टोरी है, देखो। स्मॉल विलेज है आदिलाबाद, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में। यूपी में एक स्मॉल विलेज है गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में जिसका नाम है आदिलाबाद। और मुन्ना लाल जो स्मॉल फार्मर्स है उसके पास कितनी लैंड है, 1.5 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड ही इज हैविंग एंड हिज हाउस इज इन द मेन विलेज, यानी खेत दूर है और घर उसका मेन विलेज में है। और ये क्या करते हैं, परचेज करते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स मतलब जो ज़्यादा प्रोडक्शन देते हैं। और हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स ये हर साल, हर अल्टरनेट ईयर, मतलब हर एक साल के बाद में ये परचेज कर लेते हैं। लैंड जो है फर्टाइल है और वो 2 क्रॉप्स ग्रो कर लेते हैं एनुअली, विच आर नॉर्मली व्हीट एंड राइस। नॉर्मली व्हीट एंड राइस को ग्रो करते हैं। इसके अलावा पल्सेस भी ग्रो कर लेते हैं। और ये एडवाइस एग्रीकल्चर से रिलेटेड किससे लेते हैं, फ्रेंड्स से, एल्डर्स से, या फिर एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स से। इसके अलावा ये जो एडवाइस के अलावा जो ये प्रैक्टिसेस यूज करते हैं वो, उसके अलावा टेक्निक्स जो यूज करते हैं वो ट्रैक्टर्स यूज कर लेते हैं रेंट पे फॉर प्लोइंग द फील्ड। एंड कुछ इनके जो दोस्त हैं वो ट्रेडिशनल मेथड्स लाइक बुलक्स तक को यूज करते हैं प्लोइंग के लिए।
और आसपास से ये रेंट पे पानी ले लेते हैं या वाटर ले लेते हैं इरिगेट करने के लिए ट्यूबवेल से। अब मुन्नालाल के पास इसके अलावा 2 बफेलोज और कुछ हेंस भी हैं। ये कोऑपरेटिव में मिल्क सेल आउट करते हैं और कोऑपरेटिव के मेंबर भी हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के। एंड ही आल्सो एडवाइजेस, कोऑपरेटिव आल्सो एडवाइजेस मुन्नालाल कि किस तरह का फॉडर या चारा एनिमल्स को खिलाना चाहिए, कैसे सेफ्टी वगैरह रखनी चाहिए, कैसे लाइफ स्टॉक को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। इस तरीके की एडवाइजेस भी इनको कोऑपरेटिव से मिल जाती है। और जो इनकी फैमिली मेंबर्स हैं वो फार्म एक्टिविटीज में हेल्प करते हैं। ये इनको अगर क्रेडिट चाहिए होता है तो ये कोऑपरेटिव से क्रेडिट ले लेते हैं या फिर एग्रीकल्चर बैंक से, किसके लिए, फॉर बाइंग हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स एंड अदर टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। और इसके बाद जो प्रोडक्शन होता है, अगर एक्सेस हो गया तो ये मंडी में सेल आउट कर लेते हैं जो टाउन के पास ही है। और एज ही इज नॉट हैविंग स्टोरेज फैसिलिटीज, मुन्नालाल के पास स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है, तो जो भी इनको प्राइस मिल रहा होता है ये मंडी में जाके सेल कर देते हैं मार्केट में जाके। और कुछ ईयर्स से जो गवर्नमेंट है इनके लिए स्टेप्स ले रही है ताकि इनको प्रॉपर डेवलपमेंट फैसिलिटीज मिल सके। तो ये तो हमने कंडीशन पढ़ ली एक फार्मर की इंडिया में। अब हम देखेंगे एक फार्मर की कंडीशन या फिर फार्म इन यूएसए में। तो यूएसए में जो एवरेज साइज है फार्म्स का वो काफी बड़ा होता है देन द साइज ऑफ इंडियन फार्म। जैसे कि वहां पर यूएसए की बात करें तो नॉर्मल एवरेज फार्म जो होता है 250 हेक्टेयर्स का होता है और फार्मर्स फार्म में ही रहता है। एंड कुछ जो मेजर क्रॉप्स वहाँ ग्रो की जाती है, दीज आर व्हीट, कॉटन, सोयाबीन, कॉर्न। इसके अलावा हम केस स्टडी पढ़ लेते हैं जो हॉरन की, जो एक फार्मर है कहाँ के, मिड वेस्ट यूएसए की। सो इन आयोवा स्टेट ओन्स 300 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। ठीक है, तो 300 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है इनके पास, जो के पास। और वो क्या कैसे ग्रो करते हैं, जब तक उनको श्योरिटी नहीं मिलती कि वाटर रिसोर्सेज या सॉइल की पूरी जांच नहीं कर लेते तब तक वो ग्रो नहीं करते। प्रॉपर मेजर्स लिए जाते हैं क्या करने के लिए, पेस्ट वगैरह को कंट्रोल करने के लिए ताकि वो क्रॉप्स को डैमेज ना करे। और टाइम टू टाइम वो सॉइल सैंपल्स लेबोरेटरी में सेंड करते रहते हैं सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को चेक करने के लिए कि सॉइल में सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स है भी या नहीं। अब कई बार जो है द रिजल्ट्स हेल्प जॉयस हाउ टू प्लान अ साइंटिफिक फर्टिलाइजर प्रोग्राम। अब कितने न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल में, ये बार बार अगर टेस्टिंग होती रहेगी टाइम टू टाइम तो पता रहेगा कि कितने और फर्टिलाइजर्स सॉइल में डालने की जरूरत है। इसके अलावा एक कंप्यूटर भी लिंक्ड है सैटेलाइट से जो कि पूरे फार्म की पिक्चर, फील्ड की पिक्चर टाइम वो देता रहता है, क्लियर पिक्चर। एंड दिस हेल्प्स टू यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स व्हेनेवर दे आर रिक्वायर्ड। अब टाइम टू टाइम टेस्टिंग हो रही है सॉइल की, तो कितना फर्टिलाइजर्स, कितना केमिकल्स वगैरह यूज करना है इसकी इंफॉर्मेशन भी जो के पास रहती है। इसके अलावा ट्रैक्टर्स, सीड ड्रिलर्स, लेवलर्स, कंबाइंड हार्वेस्टर्स, थ्रेशर्स आर यूज्ड फॉर डूइंग द एग्रीकल्चरल वर्क और ऑपरेशंस। और ड्रोन्स जो है एक ऑटोमेटेड ग्रीन स्टोर में स्टोर्ड है और वहां से फिर क्या कर दिए जाते हैं, मार्केट में सेंड कर दिए जाते हैं, डिस्पैच कर दिए जाते हैं मार्केट एजेंसीज में। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ फार्मर इन यूएसए। तो इससे हमें क्लियर होता है कि फार्मर जो यूएसए में इज वर्किंग लाइक अ बिजनेसमैन और जो फार्मर इंडिया में इज लाइक अ वर्किंग लाइक अ पीजेंट। देयर इज अ मच डिफरेंस अमंग द टू। So students, what you have to do, some extra important questions I will give you, those you have to do and you have to do the exercise question answers. Revise the topic well. Thank you.